الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ورفعنا لك ذکرک۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے میرے نبی تجھے میں نے دنیا میں ایسے نہیں بھیجا، بلکہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور کائنات میں بسنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اور اپنی آنکھیں مرغے کی طرح بند کرنے والوں، سن لو، ہم آج کافروں کو پیغام دیتے ہیں، وہ بے شک کافر ہے یا کوئی مسلم ہے جس نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں غلط بیانی کی، ان کے کارٹون بنائے، ان کی بے حرمتی کی، اور رب محمد کی قسم ہے کائنات میں بسنے والوں تمہاری سزا پاکستان کی عدالت منتخب کر دی ہے، تمہاری سزائیں امریکہ کا وائٹ ہاؤس منتخب کرتا ہے، لیکن سن لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا دنیا میں بسنے والوں تم نہیں بلکہ میرے رب نے آسمان سے منتخب کی ہے، جس نے میرے نبی کی رسالت کے اندر میرے نبی کی توہین کی، حرمت رسول کی توہین کی، ان کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، ان کی عمر قید نہیں ہوگی، بلکہ میرے رب نے کہا سن لو جو میرے محمد کی بے حرمتی کرے گا، استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا، اور رب محمد کی قسم ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کرنا ہے، یہ میرے رب سے قانون ہے۔ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے زمین بنائی، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا مومنوں پر، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی باری آئی تو کہا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ لیکن آؤ جب صحابہ کی داستان دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اے عمر تینوں میرے نال کتنا پیار ہے، تینوں میرے نال کتنی محبت ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی ماں نالوں، اپنے باپ نالوں، اپنے مال نالوں، اپنے قبیلے نالوں تو انہوں زیادہ پیار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تو اپنی جان نالوں بھی مجھے زیادہ پیارا سمجھنا ہے؟ عمر نے آخیا اللہ کے رسول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تو مومن ہی نہیں اس سے پیارا دیکھ لو گے۔ عمر آتا سونے اج گواہ ہو جاؤ عمر اج تو اپنی جان نالوں پیارا سمجھنا، اور ایک فیصلہ قرآن کا فیصلہ اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے۔ چلو بہار کب آئی تھی، لوگ بھول چکے تھے زندگی کے افق پر شیطان کا مہم سایہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا تھا، ہر طرف میرے راج کر رہے تھے، اندھیروں میں گری ہوئی زندگی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اتنے میں سارا فراں کی وادیوں پر اس کے ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگی۔ یہ رحمت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا۔ خالق کائنات نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا حکم صادر فرما کر تمام جہانوں کے لیے آمنہ کے لال کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین عالم برزخ کے اندر بھی آمنہ کے لال رحمت بن کر آئے، عالم دنیا کے اندر بھی کریمہ کا رحمت بن کر آئے، اور عالم ارواح کے اندر بھی عالم کے لال رحمت ہے۔ سامعین آج وقت نہیں کہ ہم جماعتوں میں بٹ گئے، ہم فقہ میں بٹ گئے، ہم گروپوں میں بٹ گئے، آج وقت ہے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا۔ جس طرح یہودی لابی اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے، آج
वसल्लम में एक प्लेटफार्म पर आ जाए। सभी जब काफर किसी, जब यहूदी किसी काफर कहीं का भी मुर्तद हो, जब किसी मुसलमान को निशाना बनाता है तो ये नहीं देखता ये दवा वाले हैं, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंद है या इनका कौन सा फिरका है। सभी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, मैं रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती, पक्के और सच्चे उम्मती होने का आज ये वादा कर लो कि किसी बगैरत की आंख हमारे नबी की इज्जत में उठे, हम उसकी आंख निकालेंगे, किसी का हाथ उठे हम उसके हाथ काटेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मेरे उस्ताद पे कहने की जसारत की है, मैंने उस्ताद पे कहने की जसारत की है, जिसके दामन को फरिश्तों ने इबादत की है, जिसकी हिम्मत है मेरे आका के बराबर आए, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। सुभान अल्लाह, ये एक मकसद है उस अंदर की ताकत को उजागर करने के लिए जो एक मुसलमान के अंदर है। किसी मुसलमान को उठा के देख लो, फिरका वारियत की बात करेंगे तो शिया सुन्नी को मारने पे तैयार होगा, अहले हदीस जो है वो सुन्नी अहले सुन्नत को मारने के लिए तैयार होगा। हम एक दूसरे की गर्दन जो है वो तन से जुदा करना चाहते हैं, लेकिन किसी फिक्रे ने आज तक जिहाद को हराम करार नहीं दिया। किसी फिक्रे ने यह नहीं कहा कि हम उस काले कमली वाले को नहीं मानते। किसी मुसलमान की किताब में उस काले कमली वाले के जिक्र के बगैर वो किताब मुकम्मल नहीं होती। उस पाक रसूल, उस पाक हस्ती के ऊपर जो मेरे हाफिज साहब ने फरमाया कि वो अमामों के अमाम है, वो अंबिया के अमाम है, लेकिन जो लोग उनकी हुर्मत पे शब खून मार रहे हैं, हम उनकी तमाम अशिया को आज 1 रुपया महंगी होती है, हम कहते हैं 2 रुपये दे दो। क्यों? कि अब तुम्हारी चीज बहुत अच्छी है, उसमें न पाक है किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ हम ये कहते हैं ओ नहीं भाई हम तो इंसान है, खाने वाली चीज है। उनकी हम मदद कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। कोई एक मुझे बताए इतने दिन से ये मामला चला है किसी ने किसी का बाइकआउट किया हो। सबसे पहले अपने वालिदैन से, अपनी जान से, हर चीज से काबिल, हर चीज से मोहतरम वो पाक हस्ती है जिसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन किसी बंदे में इतनी जुर्रत नहीं कि वो उस जहाद का ऐलान करे जो उस काले कमली वाले के लिए है। हम फिके का जहाद का ऐलान करते हैं, अपनी लड़ाई हो उसके जहाद का ऐलान करते हैं, लेकिन उस काले कमली वाले की जात का किसी ने ऐलान नहीं किया। भले वो सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी फिक्र से तल्लुक रखता हो, आज तक किसी ने उस जहाद का ऐलान नहीं किया। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ ये चंद लम्हे नहीं, अपनी जिंदगी में एक एक लम्हा उस जात के लिए वक्फ कर दो। इंशाल्लाह ये चाहते कोई चीज नहीं है। दुआ करो कि उस जात के नाम पे, उस काले कमली के वाले के नाम पे 2 फीट जगह कब्र की मिल जाए तो हमारी बख्शिश होगी। ये जिंदगी अबदी है, जो मुकम्मल जिंदगी है वो आगे है। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ बाजारों में घूमो, जिस मर्जी गाड़ी में घूमो, पैदल भी चलोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो जन्नत का सून है वो काले कमली वाले के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो मेरी हम्बल सबमिशन है तमाम दोस्तों से, तमाम फुका से, उन उलमा दीन से, उनसे कि इन लोगों के अंदर जो इकबाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हम यहूद ने सारा हमारी तरफ देख के कहते हैं ये कौन से मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं रहे कि आज वो हमारे सरेआम हमारे कमली वाले की जात के ऊपर शबे खून मार रहे हैं और हम खामोश हैं। हम में कोई भी नहीं सोचता। हम ये कहते हैं, मैं उस हुकूमत हमारी जो है, मैं इमरान खान साहब का भी, उन्होंने जो जनरल असम्बली में हमारे जो है इस्लाम के ऊपर, क्योंकि हमें तो हर मजहब यही समझता है कि हम टेररिस्ट हैं,
लेकिन उस काले कमली वाले की उठा के देखें, तालीमात को उठा के देखें। हम टेररिस्ट नहीं, हम इखलाकियात के पैरोकार हैं, और इखलाकियात सिर्फ मुसलमान से मिलती है, किसी और कौम में इखलाकियात नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपने अंदर जान के मुसलमान बनो, उस काले कमली वाले के लिए जहाद के लिए निकलो, तो फिर हमारी कामयाबी है, ये पैसे से कोई कामयाबी नहीं। एहतिजाजी नामूस रिसालत एहतिजाजी रैली को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइज़र को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हज़रत अल्लामा मोहम्मद सरवर सुलेरिया साहिब, जनाब अब्दुल जब्बार सल्फी साहिब, डॉक्टर बाबर अशरफ साहिब, राना आमिर फिरदौस साहिब, मिर्ज़ा आज़म साहिब और दीगर रस्मात की नुमाया शख्सियात मौजूद हैं। मेरे पेशवे मुकर्ररीन कम तादाद कोरोना रो रहे थे, तो मेरे भाइयों अगर हम तारीख के औराक पलटे तो मैं आपको उस एक अजीम सानहे की याद दिलाना चाहता हूँ। करबला का मैदान था, एक तरफ इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानसार थे, और दूसरी तरफ हजारों यजीदी थे, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में खड़े होकर ये पुकारा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। तो वो 72 जानिसार ही उनके साथ खड़े थे, और फिर वक्त ने देखा कि उन 72 लोगों ने इस कायनात अर्ज़ी की तारीख बदल डाली थी। हम आज कम ही होंगे, लेकिन मेरे भाइयों गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद भी एक था, गाज़ी मुमताज कादरी भी एक था, गाज़ी अहमद चीमा शहीद भी एक था। और फिर आज जब एक मलून ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, तो गाज़ी खालिद बेग था, जिसने औकात की तरफ छपक कर अदालत के अंदर उन नाम निहाद जजों के सामने उस मलून को वासे जहन्नम किया था, जिसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की थी। तो आका की नामूस पर कुर्बान होने वाले हमेशा कम होते हैं, लेकिन तारीख बदल डालते हैं। जिसका नाम अब्दुल्ला था, जिसकी उम्र 18 साल थी, और जब एक नाम नहाद टीचर ने फ्रांस में नबी करीम अलैहिस्सलाम के खाकों को अपने कॉलेज में स्टूडेंट के सामने रखा, तो फिर वहां से एहतजाज शुरू हुआ। फिर उस एहतजाज के बाद उस 18 साल के मोहम्मद अब्दुल्ला ने सैकड़ों मील का सफर करते हुए वो पेरिस पहुंचता है। फिर वहां से ये पूछता है कि वो टीचर कहाँ है, उसका नाम कहाँ है, क्या है, और वो कहाँ रहता है। फिर उस कॉलेज से निकलने के बाद उस टीचर का पीछा करता है, और उस 18 साल के नौजवान ने फिर उस टीचर को, जिसने उसका खाना खाके बनाए थे 12 इंच के, महीना हो गया एहतजाज करते हैं। साढ़े एहतजाज का ये भी नहीं असर होया कि फ्रांस का सफीरी चले जाता।
सलामती का सर जितना समझ कर वजह की है पहले सफेद जमन कराऊंगा तो सफीर तो अपना वापस होगा और फ्रांस का वापस भेजो। दूसरा हमारी जो है ना एहतजाज जो है ये एक दिल की आवाज है, वरना कोई असर नहीं ऊपर। वही लोग बैठे हुए हैं कि जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ थे। आपके खिलाफ दारुल नदवा में मशा हुआ था। जब सरकार को खबर हुई तो आप परेशान थे, लेकिन फरार की टोलियों से आवाज आई हमारा फाराना को जिक्र। कमरी वाले हम तेरे जिक्र को बुलंद कर देंगे, एक खाके बनाने वाले खाक में चले जाएंगे, लेकिन नबी का चर्चा रहेगा क्या पता और इंशाअल्लाह रहेगा। और क्योंकि सरकार दुनिया को बनाए इसलिए कि रहने के लिए आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक के लिए हैं और आए रहने के लिए। आपकी कोई दुनिया की ताकत आपकी अजमत को कम नहीं कर सकती कि अल्लाह से बड़ी किसी ताकत नहीं। लेकिन हुकूमत वक्त से बस हुकूमत वक्त से हमारी यही इल्तिजा है। दो वाक़यात हुए हैं, आखिरी बात कर, दो वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या फ्रांस में हुआ, दूसरा वाक़या पेशावर में हुआ। और के उस मदरसे को वजीर किया है, किसी ने उन्हें की माली इमदाद इन्हारी किया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत वक्त के पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। क्या हुकूमत वक्त हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले से उठ के अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए खड़े हैं। आप हमारी आवाज के लब्बैक कहते हुए पूरी उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करो। क्यों कि वो एक फर्द नहीं है, एक हुक्मरान जमात है, एक मुल्क है और उसके पीछे हनूद और यहूद है। दोस्तों ये कोई एक फर्द की बात नहीं है, ये एक मुमलिकत है, एक ताकतवर मुमलिकत है। उसके पीछे दुनिया की ताकतवर मुमलिकतें हैं। हमें अपने शऊर को थोड़ा सा जिला देनी चाहिए। हमें हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हुकूमत वक्त आप दीगर मुसलमान ममालिक OIC जो मुद्दा घोड़े की तरह है, जो सोई हुई है, इस वक्त उसका किरदार था, हमें उस पर लाल तान करनी चाहिए। उम्मत रसूल पे ये जो हमले हो रहे हैं उसकी मुजरम इस वक्त OIC है। हम किसकी बात करें? हमारा मुकदमा कौन लड़े? जो हमारा मुकदमा लड़ने की अहलियत रखते हैं उम्मत मुसलमान की जो इस वक्त वाहिद जमात थी OIC का इत्तेहाद था। फौज मेरा पहरा दे। इतने में साथ में नबी वकास वो आते हैं, दरवाज़ा को खटखटाते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी क्या बात है, आप पर खौफ तारी है? फरमाया मैं यही सोच रहा था कुफार की तरफ से हमला होगा तो मेरी जान लेवा आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लम यूं ही बात की। फरमाया मैं चाह रहा था कि मेरा पहरा दे, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करे, मेरी जान की हिफाजत करे। साथ में नबी वकास कहते हैं अपनी तलवार मैंने निकाली और सारी रात अल्लाह के नबी का पहरा दिया। दोहद का वाक़या, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम सिपा सलार हैं, कमान कर रहे हैं, सहाबा जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की तरफ काफिर पड़ते हैं। नौ अंसारी अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में पेश करते हुए, नबी की दुआ करते हुए, नबी की हुर्मत के लिए, नबी की नाबूस के लिए 9 अंसारों ने अपनी जानें पेश कर दी। साथ में नबी वकास अपनी सारी रात पहरा देते रहे। साथ में नबी कबीले का सरदार है, जाते हुए शहीद होते हुए ये बात होगा। स्टैब्लिशमेंट के अदारे पूरा दिफा करे, हुक्मरान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इसको असेंबली में पेश करे, कौमी असेंबली में पेश करे और इसका दिफा करे। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बुनियादी बात करूंगा, जफरवाल के ताजरान, सदर ताजरान से गुजारिश करूंगा, जितनी प्रोडक्ट बनी हुई है फ्रांस के नाम पे, मेड इन फ्रांस है, जफरवाल से इनका छपाया होगा, फिर नौरवाल से छपाया होगा, फिर उसका सियालकोट से छपाया होगा। एक घर से जब हक की बात उठेगी, नबी की रिसालत, नबी की नबूस, नबी के दिफा का दिफा जब जफरवाल से एक अमली तौर पे जामा पहना के चलेगी, फिर बात आगे चलेगी। तो क्या इस बात पे सब तैयार है? मैं ताजरान बिरादरी मोहतरम सदर ताजरान से गुजारिश करता हूँ, एक कमेटी बनाए, एक कमेटी तश्कील दे जो सारे मेडिकल स्टोर
वो ताजरों की दुकानें, वो जितनी भी दुकानें 4,000 की प्रोडक्ट पड़ी हैं, उनकी मसूरात पड़ी हैं। जिस तरह अभी आप इस चौक के अंदर बहुत बड़ा एक मुजाहरा कर रहे हैं नबी की हुर्मत पर, नबी की दिफा पर, इस जहां पर उनको आग लगनी चाहिए। जब ये नमूना पेश होगा, ये वीडियो पेश होगी, फ्रांस देखेगा कि इन्होंने हमारे फलंस के पर कमजोर करना शुरू कर दिया, उसकी जरूरत नहीं होगी पर नबी की नबूत में रसाल का डाका डाले। अल्लाह कहते हैं इन्ना कफैना कल मुस्तदाईन, अल्लाह कहते हैं मैं काफी हूं नबी तेरी इफा कीजिए। इन्ना शाना हुवल अब्तर, नबी जब काफिर तो यह कहते हैं इसकी औलाद नहीं है, न वल्द है, बल्कि तेरी औलाद है, तो न वल्द नहीं है। और अफाना अल्लाह का जिक्र, नबी मैंने तेरा इतना जिक्र बुलंद कर दिया है रह जब क़यामत दुनिया तक सहाबा अंबिया के जाने के बाद, वली औलिया के जाने के बाद, इमामों के जाने के बाद क़यामत के दिन तक के लिए नबी तेरा जिक्र बुलंद है। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? मैदान माशर होगा, अल्लाह पर नूह के पास जाएंगे और सिफारिश करो, 50,000 साल का दिन है, बहुत गर्मी से लोग पीस रहे हैं और सिफारिश की जाए ताकि अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। नूह कहता है अपने बेटे की सिफारिश की नहीं जा सकता। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, सिफारिश को अल्लाह जज़ा सज़ा का दिन कायम हो चुका है, हिसाब जल्दी कर दे, बर्दाश्त कर नहीं की जाती। वो कहेंगे मुझसे भी गलती हो गई थी। अदरीस अलैहिस्सलाम कहता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई सिफारिश नहीं होगा। अल्लाह कहते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, या रब्बी उसको छोड़ना होगा। मैं भूखा तो रह सकता हूँ, मेरी जान तो कट सकती है, मेरे नोचा तो जा सकता है, लेकिन नबी की हुर्मत में ठाके डालने के लिए माफी होगा। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, नबी की हुर्मत का दिफा हो सकता है। वरना सिर्फ हम इसी बात को कर ले कि सिर्फ शोर शराबा कर ले, शोर से बात नहीं बनेगी। लेकिन जो मुसलमानों पे आज बहुत बड़ी जुल्म और सितम की पहाड़ टूट रही हैं, अल्लाह मुसलमानों को खड़ा फरमा, या अल्लाह इनको कुव्वत और ताकत फरमा, या अल्लाह कुफ्फार की तरफ से साजिश से इनको नाकाम बना, या अल्लाह मुसलमानों का इत्तेहाद पैदा कर दे, या अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा, या अल्लाह जो फिरका वरीद में बटे बटे अल्लाह इनको एक कलमे पर खड़ा फरमा, अल्लाह अपने इस्लाम पर नबी की तरीक़ेकार पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कुफ्फार फलांगे करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाकर नबी के कार्टून बनाकर हमसे पैसा वसूल करते हैं, अल्लाह मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमा के अपने अंदर ही से इनके प्रोडक्ट तैयार हुए। अल्लाह मुसलमानों की माशियत मजबूत फरमा, अल्लाह काफिर की माशियत जो है उसको नाकाम फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान इनके सब के अंदर हुब्बे रसूल हुब्बुल्लाह पैदा फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर सबका दिफा फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने नबी का तो दिफा खूब करना जानता है, अल्लाह कोई सरिया और सिपा बना दे, अल्लाह इन काफिरों को निस्तो मूद फरमा। या इसने जैसे साजिश की अल्लाह उसे तू खूब बदला लेना जानता है, अल्लाह उस काफिर की गर्दन तन सिका कर तू ऐसा मरते मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम खालिद पैदा फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन